Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And as you can see on the screen, we are going to discuss the specimen, format, ruling, and of course you can call it proforma of journal. Okay. Obviously in this chapter we are all discussing about journal. So today practically how are we going to put the entries in the journal, how are we going to write it, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. फॉर्मेट क्या है, कैसे आपको कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्यों लिखना है. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू discuss. Obvious है 11th commerce bookkeeping and accountancy chapter number 3 journal children. So henceforth after this explanation when we are going to solve the practical problems, this is how the format should be. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video is going to be very useful to you all. ठीक है. तो चलिए इसी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ या थॉट के साथ शुरू करते हैं स्पेसिमेन और प्रोफॉर्मा ऑफ जर्नल. ठीक है. ऑब्वियस है हेडिंग में जर्नल ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द नेम एंड ऑल दैट यू हैव टू स्पेसिफाई. दिस इज द फॉर्मेट स्टूडेंट्स. यू कैन सी देर आर 1 2 3 4 5 कॉलम्स. ओके, डेट कॉलम में यहाँ पर ईयर मंथ वाइज यू हैव टू राइट योर डेट. ओके, दिस शुड बी द फॉर्मेट. योर यू हैव टू राइट मंथ एंड डेट. ठीक है. पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या आता है, अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड, showing the debit, and the name account which have to be credited with starting with 2, but here you are not writing credit, you have to just write to which account you are going to write as credited. ठीक है. And then in the bracket a brief explanation. All these things we are going to explain here below in a systematic manner. ठीक है. Then you have LF students, it is nothing but ledger folio, पेज नंबर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. और यहाँ डेबिट अमाउंट में आएगा आपका अमाउंट विच हैज़ टू बी डेबिटेड, एंड क्रेडिट अमाउंट में आएगा अमाउंट विच हैज़ टू बी credited. So this is the entire format. You have to understand it, but what is the importance of each column, that's what we are going to understand in this video. ठीक है. फॉर्मेट सबको पता चल गया. दिस इज हाउ द फॉर्मेट शुड बी स्टूडेंट्स. 5 कॉलम्स अच्छे से, डेट, particulars, once again I'm telling you, ledger folio, debit amount in rupees, this symbol is very important children, credit amount in rupees. So let's get started with the explanation of each and every column students. सबसे पहले आता है आपका date. Now in this column of journal records of the year, month and date of every transaction is written. Obvious है, जब भी ट्रांजेक्शन हुआ है या when the transaction has taken place, उसका जो ईयर है, मंथ है, मे बी फॉर एग्जाम्पल आई विल से 2020, मंथ है सितंबर, डेट है 9. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इट. द ईयर शुड बी रिटन एट द टॉप एंड बिलो दैट द मंथ एंड डेट शुड बी रिटन. मतलब यहाँ पे जो आपका ईयर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है 2020 इफ इट्स दैट पर्टिकुलर ईयर. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इट. नीचे आएगा आपका डेट एंड मंथ. ओके, लेकिन हेडिंग आपको यहाँ साल लिखना है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2020 September 9 in this way. Okay, and date should be written below. I am to say month and date should be written below, यहाँ पे नीचे. Okay, then comes the second column, that is your particulars column children. Particulars column में you have to write, or in particular column the journal entry is passed in 3 parts. You can see here, एक फर्स्ट पार्ट है आपका डेबिट अकाउंट. इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड. आपको वो अकाउंट लिखना है जो आपका डेबिट होता है. फिर क्रेडिट अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. कौन जो अकाउंट आप क्रेडिट करने वाले हो वो आप नीचे लिखते हो स्टार्टिंग विथ 2. ओके, now this is decided by applying the rules of debit and credit. Students, we have studied about 3 types of accounts: real account, nominal account, personal account. Remember? तो जो गोल्डन रूल्स थे, इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. रिमेंबर चिल्ड्रन, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट. तो वो रूल्स डिसाइड करते हैं कौन सा डेबिट करना है और कौन सा क्रेडिट. ठीक है. द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट. ये हमको दर्शाता है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे चिल्ड्रन.
अकाउंट जो डेबिट होता है वो हम पहले लाइन पर लिखते हैं, विच फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स, तो परचेज गुड्स फॉर कैश। अगर मैं ये एंट्री समझ के चलूँ तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो हमारा परचेज अकाउंट विल बी वन अकाउंट विच हैज़ टू बी डेबिटेड, वो हमें पहले लिखना है। ओके, और विथ वी हैव टू शो इट DR डॉट, दैट इज योर डेबिट। ठीक है, देन द वर्ड DR इज रिटन इन फ्रंट ऑफ द डेबिटेड अकाउंट जस्ट नियर द LF। ऑब्वियसली आपको LF का कॉलम आपको दिख ही रहा है ना, द थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो, तो जस्ट बिफोर दैट आपको यहाँ पर डेबिट करके लिखना है। ठीक है, then the account to be credited is written on the next line beginning with the word to, after leaving short space just near the date column। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जो अकाउंट आपका क्रेडिट होना है वो थोड़ा सा आप स्पेस छोड़ोगे, डेट कॉलम के साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ के 2 से आप स्टार्ट करोगे, T कैपिटल 2, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वहाँ सिर्फ उस अकाउंट का नाम आपको लिखना है। नरेशन इज टू बी रिटन जस्ट बिलो द जर्नल एंट्री। द थर्ड पार्ट जो है, वैसे हमने आपको बताया कि पर्टिकुलर कॉलम जो है वो 3 हिस्सों में दिखाया गया है। एक है जो अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा जो अकाउंट क्रेडिट होता है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नरेशन। तो यहाँ पर जस्ट बिलो दिस अकाउंट टू बी क्रेडिटेड आपको ब्रैकेट में लिखना है बीइंग वॉट एवर इट इज नरेशन। परचेज, या फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल दिया परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज अकाउंट टू कैश व्हाट गोज आउट, राइट, ये हमने किया है ना स्टूडेंट्स। तो नरेशन में आपको लिखना है बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो ये हम प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आगे बहुत सारे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व जो आपको एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग भी देगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर डेबिट एंड क्रेडिट। लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट। नरेशन मैंने आपको बताया ना, व्हाट इज नरेशन स्टूडेंट्स? It is a brief explanation of the journal entry. It is written in the bracket and begins with the word being। ये हमेशा याद रखना कि आपका जो नरेशन है वो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी एंट्री या ट्रांजेक्शन हुई है, और इट स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। ठीक है, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्विकली। लेजर फोलियो LF, अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, शो इट टू यू अगेन। ये LF कुछ और नहीं है, ये लेजर फोलियो नंबर है जिसको हम पेज नंबर भी कहते हैं स्टूडेंट्स ऑफ द लेजर। द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द जर्नल आर पोस्टेड टू द लेजर। ओके, जर्नल के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स। तो जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल में एंट्री करे हुए हैं या हमने किया हुआ है वो डायरेक्टली जाते हैं आपके लेजर अकाउंट में। In this column, the page number should be recorded against each and every account at the time of posting in the ledger। तो आपको क्या करना है, इस कॉलम में पेज नंबर आपको रिकॉर्ड करना है, जितने भी एंट्रीज होते हैं, जिसके भी अकाउंट के एंट्रीज होते हैं एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग, आपको वो रिकॉर्ड करना है इन द लेजर। द फोलियो नंबर में बी रिटन इन रेड इंक। ऑलवेज रिमेंबर चिल्ड्रन, क्योंकि वो आसानी से आइडेंटिफाई हो, इसीलिए हम पेज नंबर जो है या फोलियो नंबर जो है वो रेड इंक में लिखते हैं, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द अमाउंट। तो आपको एकदम से पता चल जाएगा कि हाँ इसका पेज नंबर क्या है। ठीक है, सो दैट्स वाई लेजर फोलियो नंबर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर डेबिट अमाउंट। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट इज रिटन। देखो आप यहाँ अगेन देख सकते हो, ये है आपका डेबिट अमाउंट। तो जो भी अकाउंट आप डेबिट करते हो तो उसके सीधे सीधे डेबिट अमाउंट में वो अमाउंट आएगा। फॉर एग्जांपल परचेज गुड्स फॉर कैश, मैंने ये एंट्री आपको बताई थी, समझो 5000 रुपये डेबिट हुए हैं, तो यहाँ डेबिट में आएगा 5000। ठीक है, और टू कैश, द नेक्स्ट वन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज योर क्रेडिट अमाउंट। इन दिस कॉलम द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अकाउंट इज रिटन। तो जो भी एंट्री आपने पास की है क्रेडिट में, टू व्हाट्सोएवर, तो क्रेडिट अमाउंट में आपको लिखना है 5000 रुपीज। So this is a pure explanation about the specimen or the format of journal. ठीक है, henceforth we are going to make these columns and we are going to enter it systematically. How are we going to enter the things and all? Practically we will definitely solve students. So now I think you got a very clear idea about date कैसे लिखना है, particulars में क्या आता है, डेबिट क्रेडिट, फिर नरेशन, फिर लेजर फोलियो नंबर क्या है, क्यों लिखा जाता है, कौन से कलर से लिखा जाता है, फिर अमाउंट जो डेबिट होता है वो कहाँ लिखा जाता है, और क्रेडिट अमाउंट में कौन से साइड पर लिखा जाता है इन देयर रिस्पेक्टिव कॉलम्स।
So I hope students today in this video you got a brief gist about what is the proforma of journal and what are its items which come under that, right? Whatever columns we have to prepare. So that's it, children, in this video. Just keep revising, more to come. Just keep understanding the concepts from its base so that you will be very strong in its foundation and you can solve n number of problems ahead. Okay? So chaliye students, we'll wind up here. Thank you so much. Take care. Thank you.